So IIM Shillong interview is just around the corner, and we could see a lot of anxiety among the students. SOP based होगा, 50% contribution of your selection is going to be on this interview only. Online होगा, SOP based होगा, बहुत सारे factors हैं, बहुत सारे videos में हमने भाई कई सारी बातें उसकी cover भी की हैं. However, a very important thing is to take care that your interview is heavily going to be about SOP that you have written. SOP means 2 questions के answers जो आपको form में submit करने के लिए कहे गए थे. Many of you have taken proper guidance in filling those things. Many of you may not have taken guidance, and then you may be now thinking कि पता नहीं अब हमें इसमें किस तरीके से उसको डिफेंड करना होगा. Most of you, I would say, have taken help of AI to generate those answers and send it. Now that can be a blunder. But if you have sent it, how to do it now? या अगर आपने thoughtfully इसको किया है तो भी हमें उसको क्या करने की ज़रूरत है. Make sure to follow each and every point of this video to prepare yourself for this crucial interview part. And if you do it well, if you take care of it, it's going to be a bang on response, and you will really be getting through this interview, making your interviewer proud of you, I would say, अगर आप इस चीज़ पे अच्छे से ध्यान देते हैं. right? Okay, so let's see what was the content. क्या क्या पूछा गया था उसमें. 2 basic question थे. So who am I? What life experiences may have shaped you to be the kind of person who you are? Okay, so who am I is a very philosophical question. Many of you might have thought कि ये question कहाँ से आ गया. Then you would have taken help of AI or maybe your mentors or somebody, because at this age getting these kind of philosophical question answered is not really very easy kind of thing. So you must have taken help. Good to take help. But what must have happened is कि जो भी आपने लिखा है क्या आप उसको रियली वहाँ पे डिफेंड कर पाओगे. सो क्या करना चाहिए उस केस में. आपने कुछ भी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए होंगे, बताया होगा कि किस तरीके से आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको इस तरह का पर्सन बनाया है. Make sure that each and every word that you have written in that particular answer, you know the exact meaning of the word. When I say exact meaning, like many of us are going to use flowery language. आप लोगों ने यूज़ की होगी अच्छी सी लैंग्वेज इम्प्रेस करने के लिए. उसमें बहुत सारे वर्ड्स, एथिक्स, मोरालिटी, पर्पस ऑफ लाइफ, और मे बी एनी सॉर्ट ऑफ वर्ड, डिवाइन इंटरवेंशन, और कुछ भी इस तरह के आपने एक्सप्रेशंस अगर उसमें यूज़ किए हैं तो मेक श्योर दैट दे आर गोइंग टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर द पर्पस इज कि इतने क्वेश्चन आपसे क्यों पूछेंगे. वो एक्चुअली देखना चाहते हैं कि ये वाकई आपका आंसर है या आपने कहीं से बना के लिखा है. इन बोथ द केसेस you got to really defend your answer. One, you need to be very careful about the words that you have chosen. लाइफ एक्सपीरियंसेस जो आपने उसमें मेंशन किए हैं उनके बारे में खुद से क्वेश्चंस जनरेट कीजिए. यू बिकम द इंटरव्यूअर, चेंज द रोल रिवर्सल. अभी भी हमारे पास 1-2 दिन का टाइम है. जिनके इंटरव्यूज़ 21 तारीख को हैं या अगले 22-23 तारीख को इंटरव्यूज़ हैं. सो वी हैव एटलीस्ट अ डे इन आवर हैंड, एंड व्हाट कैन बी डन इज़ कि आप एक रोल रिवर्सल का गेम प्ले कीजिए. आप एक अपना जो SOP जो आंसर आपने लिखा है, मान के चलिए कि आप अगर इंटरव्यूअर हैं और कोई पर्सन आपको इस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है, सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क टू ऑथेंटिकेट कि ये पर्सन ने ये सही लिखा है या नहीं लिखा है. टू फर्स्ट टू वेरीफाई एंड देन टू सी कि किस डेप्थ तक उसको इसके बारे में पता है. So once you generate those questions in your mind, or you may ask your mentor or anybody whose help you are taking, तो वो भी आपके लिए different questions generate करेंगे. Try to work out their answers, reasonable answers. Don't get into too much of flowery language. वो जो लैंग्वेज यूज़ करनी थी वो आप कर चुके हो, बट बहुत रीजनेबल लैंग्वेज, बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स एक बार वर्कआउट करने हैं. इट्स नॉट दैट यू विल हैव टू राइट देम डाउन एंड देन मग देम अप. नो,
बट इफ़ यू नो कि किस किस तरह से किस किस एरिया से सवाल हो सकता है, कहाँ से होगा, जो आपने आंसर दिया है उसी में से होगा. इट्स नॉट कि कोई बाहर से क्वेश्चन होगा, उन्हीं में से क्वेश्चंस होंगे, बट वो क्वेश्चंस आप पहले खुद से जनरेट कीजिए और उनके आंसर्स को वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए. स्पेशली लाइक डिफाइन दिस, व्हाट डू यू थिंक, कि इसका क्या मतलब होता है, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. अ लिटिल फिलोसॉफिकल, गेटिंग इनटू लिटिल फिलोसॉफिकल डेप्थ. दिस क्वेश्चन इज वेरी फिलोसॉफिकल. वो तो उन्होंने ये ब्रैकेट में ये डाल दिया है कि किस तरीके से आपको उसको आंसर करना है, अदरवाइज द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हु एम आई, राइट. वट एवर यू हैव रिटन द रिस्पॉन्स, नाउ इज नॉट द टाइम टू डिस्कस कि आपका रिस्पॉन्स क्या था, बट उस रिस्पॉन्स को कैसे डिफेंड करना है वो अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं. तो यू बिकम द इंटरव्यूअर, राइट डाउन द क्वेश्चंस, राइट डाउन वो क्वेश्चंस लिखने और उनके आंसर्स वर्कआउट कीजिए. व्हेन आई से वर्कआउट, गो थ्रू देम, रिसर्च कीजिए थोड़ी सी, लिखने की ज़रूरत नहीं है उनके आंसर्स को, बट अ प्री मेडिटेटेड अप्रोच. व्हेन आई से प्री मेडिटेटेड मीन्स इफ यू हैव थॉट अबाउट दोज क्वेश्चंस, तो वो आपके लिए शॉकर्स नहीं होंगे वहाँ पे. यू विल हैव सम ग्राउंड टू रिस्पॉन्ड टू देम. लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो भी आपने मेंशन किए हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा और डीप में भी क्या सवाल हो सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता. हाइपोथेटिकल, लॉट ऑफ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड. ध्यान रखिए, फिलोसॉफिकल कंटेंट है, hypothetical. A very simple, I mean, may not be directly related to this. A very simple question I usually ask in interviews कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे. And invariably everybody starts blabbering out कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा. And then when I see their answers, I really fail to understand कि there is no maturity in those answers. Let's try to figure out. मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल की सेंस में कि किस तरीके से अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे अप्रोच करना है. अगर इस तरह का क्वेश्चन है, से यही क्वेश्चन अगर है, सोच के देखिए, इसके पैरेलल में एक क्वेश्चन अपने दिमाग में कंसिडर कीजिए. इफ आई मेक यू चेयरमैन ऑफ रिलायंस इन प्लेस ऑफ मुकेश अंबानी, व्हाट विल यू डू? विल यू बी एबल टू डू एनीथिंग बेटर देन हिम, better than he does? I mean, very frankly, for most of you and for most of us also, the answer would be no, it's not possible. We cannot do better than what he is doing. Now, when रिलायंस को चलाने के लिए आप कोई सजेशन नहीं दे सकते हो, तो देश को चलाने के लिए कैसे दे सकते हो आप? एंड दैट टू एट दिस एज वेयर योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर इज very limited, very limited. I am not talking about your intelligence or maturity. I am talking about experience and exposure. So with this kind of thing, if you are answering anything, I mean that doesn't make sense. So what shall be the thing? Hypothetical question पूछा है तो हर question का जवाब देना ज़रूरी नहीं है. You should know your limits. You can very politely say it's a very overwhelming responsibility for a person like me. Like me means for a person of my age and my exposure and experience. Frankly, I am right now not in a position to even think about what kind of action I would take. When I say कि आप इस तरह से अगर बता रहे हैं, तो that doesn't mean कि आप अपने को दिखा रहे हैं कि मुझ में कोई confidence नहीं है. No, it's not a question of confidence. It's rather checking कि कितने over confident हो आप. क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप ये बता सकते हो कि एज ए प्राइम मिनिस्टर आप क्या करोगे अभी 19-20 ईयर की एज में, जब हमें पॉलिटिक्स का, जब हमें इकोनॉमिक्स का, जब हमें पीपल हैंडलिंग का और वर्ल्ड अफेयर्स का कोई भी एक्सपोजर एक्सपीरियंस नहीं है. इफ दैट द केस इज, आई मीन दैट्स लाइक आई वुड रियली सी समबडी, कोई जो इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, एज वेरी इमेच्योर. सो आप अपनी एज मेच्योर के हिसाब से बात कीजिए. सो टेल इन दिस सिचुएशन, सर्टेनली आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टेल यू. Even if they insist, then also you should give a disclaimer. The disclaimer is, sir, since you are asking me, so with my limited knowledge and experience and exposure, this is what I think may be, giving it in the form of a very gentle, polite suggestion, not as if that you have the ready answer for all the problems of the country and once you are simply waiting कि किस दिन मुझे बना देंगे. Don't do that. Right?
नाउ दिस इज वेयर हु एम आई अगर वो पूछ रहे हैं और उसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपने जो इतनी सारी बातें अपने बारे में लिखी हैं वहाँ पर, उनको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है और कहाँ है. दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर एटीट्यूड. चेक रखिए, ये इंटरव्यू नहीं है इन अ सेंस कि वो आपकी नॉलेज और एक्सपर्टीज चेक करने के लिए. इट्स नॉट अ जॉब इंटरव्यू. It is an interview where they are looking for people with the right kind of attitude. Aptitude आपका fit है, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट पास कर लिया है आपने. But what they are looking at is the right kind of attitude. Okay, what is your idea of a beautiful life and why? Again, very interesting and very philosophical question. मेक श्योर इसके भी जो आपने आंसर्स लिखे हैं, व्हाट मेक्स लाइफ ब्यूटिफुल फॉर यू, दैट मीन्स व्हाट आर योर एस्पिरेशंस इन लाइफ, राइट? व्हाट आर यू रियली लुकिंग एट इन योर लाइफ एट दिस एज एंड दिस जंक्चर. सर्टेनली उतना मैच्योरिटी से आंसर करना पॉसिबल नहीं होगा, एंड दैट्स द लिमिट दैट यू मस्ट एक्सेप्ट, राइट? बी हम्बल. एंड इफ यू हैव अगेन यूज एनी फ्लारी लैंग्वेज और समथिंग, जब भी इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यू में, बी वेरी सिंपल. बी वेरी सिंपल. डू नॉट ट्राई टू यूज सेम फ्लारी लैंग्वेज, सेम काइंड ऑफ हाइपरबोलिक और ट्राइंग टू मेक द थिंग्स फैंटाबुलस कि बहुत बढ़िया मैं इसको बोल के आऊँगा, कि आपको कोई ऐसे बोलने के लिए दिया जा रहा है. नॉट दैट. ट्राई टू बी humble, ट्राई टू बी वेरी genuine in whatever you are saying. And again, जो भी आपने लिखा है उसको डिफेंड तो करना पड़ेगा. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट से कि नहीं मैंने तो वो ऐसे ही लिख दिया था, मुझे ऐसे लग रहा था कि सिर्फ इससे आपको इम्प्रेस करना है और अब तो आप इंटरव्यू में मुझसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं. नो, यू विल हैव टू डिफेंड. देयर इज नो वे you can say कि that was a kind of mistake. No, that's not the option. But the option is that if you have used, which most of you have used, that I know, कि बहुत उसको बढ़ा चढ़ा के और बहुत ही एक what I would say डेकोरेटिव लैंग्वेज में अगर उसको लिखा है, सो टेक केयर कि जब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज सिंपल है. जब आपसे उसके बारे में कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है तो आपकी लैंग्वेज सिंपल है. एंड देन एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जो भी आपने सवालों के रिस्पॉन्सेज लिखे हैं इन क्वेश्चंस के, make sure that you read them well, very well. It's not that you have to mug it up by heart, no, but you should know what exactly have you written. And then again, do a little role reversal and start asking yourself कि अगर कोई मुझे ऐसा respond कर रहा है तो what kind of questions and which questions I'm going to ask this person to ensure कि ये जो उसने लिखा है सही है. That's it, right? So once you have this kind of approach, you generate questions and you work out their answers, you will be prepared for this kind of interview. And this is crucial. 50% weightage to interview, and your interview, what I foresee, अभी तक interviews हुए नहीं है, but I foresee that Monday onwards जब interview होंगे तो आपका SOP उस interview का major chunk होगा. This is how it works, right? विश यू ऑल द बेस्ट. मेक श्योर कि जो जो आपको बातें बताई गई हैं आप उनको फॉलो करें और अपने आप को इसके लिए अच्छे से तैयार करें. डू योर बेस्ट. टेक केयर. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.